Hi students, this is Prakash Posar. Today I am going to continue the chapter Science 1 Chapter 2 Periodic Classification of Elements. The remaining topics are periodic trends in modern periodic table, valency, atomic size and metallic and non-metallic characters. This we are going to see under trends in modern periodic table. And the next topic we are going to see is the gradation in halogen family. I'll try to complete this chapter today, or else definitely we are going to complete in the next lecture. So students, you can see our topic is periodic trend in modern periodic table. So periodic trend in modern periodic table. So first of all, what do you mean by periodic trend? So students, periodic trend means there is a regularity in the variations. So now students, if I go to the modern periodic table, here we can see there is a variation. Now if I go down the group, here in the first group, what I can say there is a increase in reactivity of the elements. That means lithium is less reactive, sodium is more reactive than lithium, and potassium is more reactive than lithium and sodium. So we can see that down the group there is a variation in or variation in the reactivity of the elements. So suppose if we go to periods, if I talk about periods from left to right, so suppose if I talk about period number 2, this is period number 2. So if I talk about period number 2, lithium has 1 electron in the outermost orbit, beryllium has 2, and boron has 3 electrons. That means the valency is group 1 is 1, valency of group 2 is 2, and now valency of group 13 is 3. And if I talk about carbon, the valency is 4, and if I talk about nitrogen, the valency is again 3, oxygen is 2, and fluorine is 1, and neon is 0. So if I talk about the periodic trend which has a property called valency, so valency increases. We can see here 1, 2, 3 and 4, and then it decreases 3, 2, 1 and 0. So the periodic trend about valency says that first the valency increases, and then the valency decreases. So this is the periodic trend we are going to see in this topic. And another periodic trend we are going to see is the atomic size and metallic and non-metallic character. So it is the regularity observed in the variations of the groups and periods of the modern periodic table. So that is called the periodic trend in the modern periodic table. Okay students, so now we are going to talk about first periodic trend, in which the first property is the valency. So now what do you mean by valency? Valency is the capacity of an atom to combine with the other element, or in other words, valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of an atom, that is the valence electron. So to learn more about valency, we are going to solve these questions. Meanwhile, you will be going to understand what do you mean by valency. I will tell you in detail. Okay, the first question is here: what is the relationship between the electronic configuration of an element and its valency? To
see the relation between the electronic configuration and the valency, we are going to move to the whiteboard to explain it in a better way. So now, okay, so suppose sodium has, suppose sodium has atomic number 11. So what will be the electronic configuration? Electronic configuration is 2, 8, 1. That will be this is a K shell, this is L shell, this is M shell. I have already explained the distribution of electrons in the shell in the previous lecture. So now here we are going to talk about the electronic configuration and the valency. So electronic configuration of sodium is 281. And what do you mean by valency? The valency is determined by the number of electrons in the last orbit, that is M orbit. So this M orbit has one electron. So its valence is 1. Okay. So now if I suppose there are 2 electrons in the outermost orbit and 3 electrons and 4 electrons. So we can say that valency of the atom of an atom is sometimes 1, sometimes 2, sometimes 3 and sometimes 4, or it may be 0 also. So now for this sodium I can say that valence is 1. Okay. So now suppose there is another element, suppose which element if we can say about lithium. So lithium, electronic configuration of lithium is 2 and 1. So here also the valence is 1 because the outermost shell has only 1 electron. So this 1 is the valency of that element. So lithium has 1 electron, 1 valency. If I talk about chlorine, so chlorine has electronic configuration 2, 8, 7. So it has 7 electrons in the outermost orbit. So there are 7 valence electrons. But its valence is not 7. It requires only 1 electron. To complete its last orbit L. Therefore its therefore its valency is also 1. उसका valency, क्लोरीन का valency स्टूडेंट्स 1 है, क्योंकि इसका लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन से उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए, ताकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. तो 1 इलेक्ट्रॉन से चाहिए, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंसी 1 है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सपोज talk about oxygen. So oxygen has electronic configuration 2 and 6. So now there are how many electrons in the last orbit? There are 6 electrons in the last orbit. It means that there are 6 valence electron. So it requires 2 electrons. It requires how many electrons? 2 electrons to complete the second orbit. आपको पता है सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वह उसका वैलेंसी है. 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट ऑर्बिट में है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, पर उसकी वैलेंसी जो है स्टूडेंट्स दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स. उसका वैलेंसी इज़ द 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इस तरह से हम वैलेंसी पता करेंगे. और एक एग्जांपल मैं दूंगा, कार्बन. तो कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर 6.
सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4 2,4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये लास्ट ऑर्बिट में है। सो दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसका वैलेंसी भी 4 है। वाई? इट रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, इट रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द सेकेंड ऑर्बिट, दैट इज एल ऑर्बिट। ओके, सो नाउ दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर्स, तो इसका वैलेंसी कितना होगा स्टूडेंट्स? इसका वैलेंसी होगा 4। ओके, इसका वैलेंसी होगा 4। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू। टॉक अबाउट नियॉन। नियॉन हैज़ एटॉमिक नंबर 10। सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 8। सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। तो व्हाट विल द वैलेंसी? वैलेंसी विल बी 0। what will be the valency? Valence will be 0 because it does not gain electrons or it will not lose electrons, क्योंकि उसका outermost orbit complete है। okay students, so in this way we can see that there is a relationship between the electronic configuration and the valency। अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वह लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। देयरफॉर इट हैज़ अ वैलेंसी, इट विल हैव अ वैलेंसी 2। अगर 2, 8, 3 है तो स्टूडेंट्स क्या होगा? यस 3, क्योंकि उसका वैलेंसी लास्ट ऑर्बिट जो है उस लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? लास्ट ऑर्बिट 2, 8 अगर 3 है तो क्या होगा? लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी और एलिमेंट को दे देगा। देयरफॉर उसका वैलेंसी कितना होगा? 3। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, अगर अभी हम थोड़ा सा और कुछ एलिमेंट्स लेंगे और डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट क्लोरीन एंड वन मोर एलिमेंट दैट इज़ सपोज सल्फर। तो सल्फर हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 स्टूडेंट्स। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 16 सॉरी, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2, 8 and then 6। okay, 2, 8, 6। so now in this is the first orbit K, this is second orbit L, this is last orbit M। so it has 6 electrons in the outermost orbit, so it has 6 valence electron। जो भी outermost orbit में जो जितने भी electrons होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब हम ये देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को तो देना पॉसिबल नहीं है, तो इट विल रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो, तो इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से वी सी दैट 6 इलेक्ट्रॉन्स वो दे नहीं सकता, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इट विल बी 2, 8 and 8 बिकॉज तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका सल्फर का वैलेंसी क्या है स्टूडेंट्स? 2, बिकॉज इट रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे 2, 8, 6, तो हमें ये पता चल रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन वो नहीं दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब उसकी वैलेंसी 2 है। तो वी कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द valency। so this is the first question which I have explained in detail, so please watch this video again and again to this topic valency, so that it will clear your basic concept of valency, which is very important for your future studies। next question is atomic number of beryllium is 4 while that of oxygen is 8। तो write down the electronic configuration of the 2 elements and reduce the valency। ये भी आप उसी में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस यू ऑन द वाइट बोर्ड। ओके,
So it is given that atomic number of beryllium is 4. So what will be the electronic configuration of beryllium? Electronic configuration of beryllium is 2, 2. Why? It has atomic number 4. 2, 2. First orbit K 2 electrons, that is K shell, and second orbit L, तो इट हैज़ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 2. 4 में से 2 पहले ऑर्बिट में गया, तो बाकी के 2 लास्ट ऑर्बिट में. तो 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो गया और वैलेंसी भी 2 हो गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 और 4 रहा तो उसका वैलेंसी भी होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो इस तरह से. नाउ नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन. तो इफ़ आई टॉक अबाउट एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8. ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 6. ओके. सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो वैलेंसी कभी भी 1, 2, 3, 4 और 0 हो सकती है, बट वैलेंसी कभी भी 5, 6, 7, 8 नहीं हो सकती है. तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द एल ऑर्बिट. एल ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो वैलेंसी इसकी 2 है. ओके. वैलेंस इसकी 2 है. और वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस मतलब बैलेंस. बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन्स ये उसकी वैलेंसी है. 6 इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैलेंसी है. और 6 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. 6 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी वैलेंसी है, क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ओके. इन दिस केस ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो उसकी वैलेंसी भी 2 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट वह भी 2 है स्टूडेंट्स. ओके. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बिलो द सिंबल एंड राइट द वैलेंसी एज शोन इन द सेपरेट बॉक्स. ओके. तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो नीचे ये जो टेबल दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में आपको लिखना है. इस फॉर्म में पहला सिंबल लिखना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, फिर बैलेंस लिखना है ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. सो ये 20 एलिमेंट्स है. ये 20 एलिमेंट्स है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो व्हाट आर द फर्स्ट 20 elements in the modern periodic table? Let us first see that is hydrogen. Okay. Hydrogen, then helium, then lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. तो इन सारे एलिमेंट्स के हमें क्या करना है? ये सारे एलिमेंट्स को हमें इस टाइप में लिखना है. किस टाइप में लिखना है? इस टाइप में लिखना है. इस टाइप में लिखना है. सो सिंबल फर्स्ट एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देन वैलेंसी. ओके. सो हियर वन दे हैव done it for us, that is पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2881 होगा और उसका वैलेंसी 1 होगा. ओके. तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, क्योंकि 1 हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था. बस उसको आपको एक सेपरेट बॉक्स बनाकर इस फॉर्म में लिखना है जो कि यहाँ पर दिया गया है. इस फॉर्म में आपको लिखना है. फिर भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स लिख के बताऊँगा.
सीक्वेंसली नहीं, बीच बीच में कभी 1 का ले लूँगा तो कभी बीच बीच में से ऐसे लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सिंबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंसी किस फॉर्म में लिखेंगे. ओके. So first 20 elements, so in which the first element is hydrogen. So if I write in the box type hydrogen, which has atomic number 1, and its electronic configuration is 1 itself. Its electronic configuration is 1 itself. And next is the valency. So hydrogen has 1 electron, it requires 1 more electron, so it will gain this electron, 1 electron, so उसका valency कितना आएगा 1. Okay. If I talk about next element, that is helium. Helium has atomic number 2. Helium, and उसका electronic configuration 2 है, because it has 2 electrons in the outermost shell. K shell में 2 electrons है, तो नाउ उसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी 0. वाई 0? बिकॉज इट डजेंट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स फर्स्ट ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत ही नहीं, और ना ही वो यह 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो उसका वैलेंसी इज़ 0. तो दिस कॉलम इज़ द वैलेंसी कॉलम. वैलेंसी. Okay. So now third element is lithium. Lithium has atomic number 3, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1, तो उसका एटॉमिक नंबर है 3. हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2. सो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट रिक्वायर्स 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए. इज इट पॉसिबल? नो स्टूडेंट्स. सो इट विल लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन, सो उसका वैलेंसी है 1. इसका वैलेंसी है 1. सो इस तरह से इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट, दैट इज़ बेरिलियम. बेरिलियम के बारे में हमने डिस्कस किया है. इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट बोरॉन के बारे में बात करेंगे, तो उसके पास 5 एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,3. सो इट रिक्वायर्स 5 इलेक्ट्रॉन्स. उसको 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, बट 5 इलेक्ट्रॉन्स वह कोई उसको देगा नहीं. देयरफॉर इट विल लूज दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स. थ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, देयरफॉर उसका बैलेंस ही होगा 3. सो इन दिस वे अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स आप उसको 20 एलिमेंट्स तक आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. इफ़ आई टॉक अबाउट सेकेंड लास्ट, दैट इज़ पोटेशियम. पोटेशियम का तो हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ. तो पोटेशियम हैज़ एटॉमिक नंबर 19. ओके. सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2881. ओके. सो लास्ट ऑर्बिट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैलेंसी इज़ 1, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या करेगा, वो लूज़ करेगा ऑलवेज. ओके. सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कैल्शियम, तो कैल्शियम हैज़ atomic number 20, means there are 20 electrons. How we are going to distribute? That means what is the electronic configuration? 2,8,8,2. Okay. So there are how many electrons in the outermost orbit? 2. So balance electron is 2. Therefore valence is 2 electrons, and valence is also 2. So what is the valency? Valency is 2. So in this way, from first 20 elements को आपको ये बॉक्स टाइप में ऐसा आपको लिखना है. दैट इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ओके.
So moving on to question number 4. Okay, what is the question number 4? What is the periodic trend in the variation of the valency while growing from left to right? Right. Within a period, explain your answer with reference to period number 2 and 3. तो पीरियड नंबर 2 and 3 के हिसाब से वी आर गोइंग टू see the periodic trend in the period number 2 and 3 from going left to right. Okay, so we'll see the answer for this. So this is period number 2 and this is period number 3. So as we move from left to right की तरफ अब जब हम जाएंगे तो कौन सा पीरियोडिक ट्रेंड वी कैन सी दैट वैलेंसी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो लिथियम हैज़ वैलेंसी 1, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है. वैलेंसी बेरिलियम का 2 है, बोरॉन का 3 है, ओके, कार्बन का 4 है, नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, फ्लोरीन का 1 है और नियॉन का 0 है. तो व्हाट वी से अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड वैलेंसी की वैलेंसी जो है यहाँ पर पहले इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट में जब जाएंगे और बाद में डिक्रीज़ होगी फ्रॉम 3 to 0 और फ्रॉम 4 to 0. तो दिस इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड इन पीरियड नंबर 3 and period number 4. Okay, now moving on to question number 5. What is question number 5? Question number 5 is what is the periodic trend in the variation of valency while going down a group? Explain your answer with reference to the group 1, 2 and group 18. So we have to which periodic trend we are going to follow? We are going to follow वैलेंसी के बारे में बताना है. पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया कि पीरियड में वैलेंसी क्या हो रही है, पहले इंक्रीज़ हो रही है, फिर इसके बाद में डिक्रीज़ हो रही है और 0 तक जा रही है. अभी ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे तो व्हाट विल हैपन, व्हाट वी कैन से अबाउट द वैलेंसी. सो हियर वी कैन से ग्रुप में अगर हम देखेंगे दिस ग्रुप नंबर 1, every element, that is hydrogen, lithium, sodium, potassium, every element has valency 1. तो वैलेंसी इसकी ग्रुप 1 में सेम है, दैट इज़ वैलेंसी इज़ 1. ग्रुप अगर 2 में देखेंगे तो उसकी वैलेंसी 2 है, एंड द नेक्स्ट ग्रुप वी आर गोइंग टू सी इज़ द लास्ट ग्रुप, दैट इज़ ग्रुप नंबर 18. ग्रुप नंबर 18 में आप अगर देखेंगे उसका जो वैलेंसी है वो 0 है, बिकॉज दे आर द इनर्ट गैस एलिमेंट, दे आर द रेयर गैस एलिमेंट, दे आर नोबल एलिमेंट्स, सो विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. दे आर the elements which does not lose electrons, which does not gain electrons. तो ग्रुप नंबर 1 के हिसाब से स्टूडेंट्स वैलेंसी क्या है, 1 है. ग्रुप नंबर 2 का वैलेंसी क्या है, 2 है. एंड ग्रुप नंबर लास्ट 18 दैट इज़ उसकी वैलेंसी कितनी है, 0 है स्टूडेंट्स. ओके, सो नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द atomic size. So what do you mean by atomic size? Atomic size is the size of an atom is indicated by its radius. So atomic size is the distance between the nucleus of an atom and its outermost shell. तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन, सपोज ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, ओके, और ये आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिट है. सपोज ये आपका आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है. तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम टू द आउटरमोस्ट, तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस. एंड दिस डिस्टेंस इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम and its outermost shell. Okay,
सो नाउ दिस एटॉमिक रेडियस जो है, ये जो एटॉमिक रेडियस है is expressed in the form of unit, that is picometer, which is the smaller than nanometer. So 1 picometer is how much? We can see here 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. So atomic, one question can be asked, atomic radius is expressed in unit called picometer, and picometer is smaller than the nanometer, and 1 picometer is what? 10 raised to minus 12 meter. Okay, so students, one thing I'd like to show you, that this design you have to keep it in mind, that is small radius, then big radius, then one more big radius, and then biggest radius. Okay, and then this is down the group. Student, this is down the group, that means down the group atomic size increases. We can see the atomic size increases, मतलब उसका रेडियस बढ़ रहा है, सेंटर टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सेंटर टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सेंटर टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट. Now why this it is increasing? Because number of that will we are going to see it later, but as we go from left to right in a period, from left to right in a period, what happens? Atomic radius decreases, atomic radius decreases. So this design is very important. While going down the group, atomic size increases. Okay, increases, and while going in a period from left to right, atomic size decreases, atomic size decreases. Okay students, so this is very important, we have to keep it in mind. Okay, that is this is all about the atomic size. Now here it is given that some elements and their atomic radii are given here. Some element and their atomic radii are given. Okay, so the first element is oxygen, which has a atomic radius 66, then boron atomic radius 88, carbon atomic radius 77, nitrogen atomic radius 74, beryllium atomic radius 111, lithium atomic radius 152. Okay, now looking at this, we are going to answer this table, that is use your brain power. This question has been asked in the board exam, so we have to be very particular while learning this. So what is the first question? By referring to the modern periodic table, find out the periods to which the above elements belong. That means we have to see the modern periodic table, and we have to answer to which period these elements belong. So if you see your textbook, you can see that it belongs to period number 2, because the period number 2 elements are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. So here fluorine and neon are not given, no problem, so it belongs to period number 2. Okay students, it belongs to period number 2. Now next question is, arrange the above elements in the decreasing order of their atomic radius. Decreasing order of the atomic radius. तो आपको दिस आपको पता है स्टूडेंट्स कि कैसे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस हम लिखेंगे. तो इट्स वेरी इजी. फर्स्ट राइट दोज एलिमेंट्स विच हैव अ लेस more atomic radius, which has a more atomic radius, then the lesser one, then the lesser one, and last में आपको लिस्ट वाला लिखना है, कम से कम वाला लिखना है. तो स्टूडेंट्स मेरे को बताइए, फर्स्ट एलिमेंट विल बी योर लिथियम. फर्स्ट एलिमेंट विल बी योर लिथियम बिकॉज लिथियम हैज़ द हाइएस्ट एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर, दैट इज़ 152. तो पहले आप लिखेंगे लिथियम, उसके नीचे आप लिखेंगे बेरिलियम. ओके, बेरिलियम लिखेंगे. देन वी आर गोइंग टू राइट बोरॉन. ओके, देन वी आर गोइंग टू राइट कार्बन.
because carbon has atomic radius 77. Then we are going to write nitrogen. Okay, and then last one is the oxygen. Why last one is the oxygen? Because oxygen has the least atomic radius given in the table. So this question answer number this question 2 I have answered it. What is the question? Again I am repeating. Arrange the above elements in the decreasing order of the atomic radius. मतलब ऊपर सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस वाला आ जाएगा, दैट इज़ लिथियम 152. ओके, बेरिलियम 111, बोरॉन 88. ओके, सो वी कैन सी देयर इज़ अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस. तो कार्बन जो है 77, फिर नाइट्रोजन जो है वह 74 है, और लास्ट में ऑक्सीजन जो है वह 66 है. तो देयर इज़ अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस. ओके, so next question is question number 4, that is which of the above element have the biggest and the smallest atom? The biggest atom means which has a largest atomic radius. तो कौन सा एटम के पास लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है? 152. तो लिथियम जो है बिगेस्ट एटम होगा. और कौन सा एटम के पास स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस है? दैट इज़ 66. तो ऑक्सीजन जो होगा वह स्मॉलेस्ट एटम होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस स्मॉल होगा तो उसका साइज़ छोटा होगा. तो ऑक्सीजन इतना छोटा है तो लिथियम इतना बड़ा हो गया. क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ 152 है. ओके, और लिथियम का ओनली 66 है. ओके ओके. So next question is what is the periodic trend observed in the variation of the atomic radius while going from left to right within a period? So उसका periodic trend क्या है as we go from left to right within a period? तो we can say that atomic radius decreases. Atomic radius decreases मैंने अभी आपको white board पे बताया था, वो आपको डिज़ाइन निकल के बताया था कि ऐसे आपको याद रखना है. ओके, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है. ओके, तो दिस इज़ वन पीरियोडिक ट्रेंड अबाउट द एटॉमिक साइज while going from left to right in a period. Okay students, so you will find that the atomic radius goes on decreasing while going from left to right in a period. मैंने आपको अभी बताया था ऐसे करके, ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है, क्योंकि ये जब हम पीरियड में जाएं, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज the reason behind this is this as follows. While going from left to right within a period, the atomic number increases one by one. एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता है स्टूडेंट्स. जैसे हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर जो है बढ़ता है. मीनिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट अ टाइम. तो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक एक यूनिट से बढ़ता है. 1 यूनिट से वो क्या होता है? बढ़ता है ऑन द न्यूक्लियस. हावेवर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आता है स्टूडेंट्स, गेट्स एडेड टू द सेम आउटर मोस्ट शेल. तो यह अगर एक न्यूक्लियस है और इसका फर्स्ट ऑर्बिट है सपोज, और इसका लास्ट ऑर्बिट है, तो यह जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ग्रुप नंबर वन में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रुप नंबर 13 में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है. तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अंदर की तरफ खींचे जाते हैं. अंदर की तरफ खींचे जाने की वजह से उसका जो एटॉमिक जो साइज़ होता है वो क्या होता है? डिक्रीज़ होता है. तो पहले ऐसे था, बाद में उसका ऐसा होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो नज़दीक आ रहे. सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं? नज़दीक आ रहे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस.
क्योंकि जैसे अभी एक क्लासरूम में अगर सिर्फ 10 बच्चे रहेंगे तो क्या वो बच्चे दूर दूर बैठेंगे टीचर पढ़ाते समय? नहीं। टीचर क्या करेगी, सारे 10 बच्चों को फर्स्ट बेंच में एकोमोडेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स 10 ही स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर 12 भी स्टूडेंट्स रहेंगे तो भी टीचर वही करेगी, और 13-14 भी रहेंगे तो भी वही करेगी। लेकिन अगर पूरा क्लास 50 स्टूडेंट्स से भरा रहेगा तो शी कैनॉट डू। अगर कोई फिर भी स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है लास्ट स्टूडेंट की, मैम मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो वह आगे आके एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। द सेम रूल फॉलोज हियर। तो ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ड्यू टू द increased nuclear charge on the electrons are pulled toward the nucleus to a greater extent, and thereby the size of the atom decreases. This is what I have explained by drawing the diagram. यहाँ पर ड्राइंग करके मैं आपको वही बताया था। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पैरा इज सम एलिमेंट्स एंड द एटॉमिक रेडियस आर गिवन हियर। तो यहाँ पर भी आपको कुछ बॉक्स दिए गए हैं जिसका एटॉमिक रेडियस दिया है। पोटेशियम का 231, सोडियम का 186, रुबिडियम का 244, कैल्शियम का 262 एंड लिथियम का 152। तो बाय रेफरिंग दिस टेबल वी आर गोइंग टू आंसर दिस 5 क्वेश्चंस, then I will stop this lecture. Okay students, so now what is question number 1? Question number 1 says that by referring to the modern periodic table, find out the groups to which the above element belong. So I can say that all these elements belong to group number 1. So group number 1 के कौन से elements है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रांशियम. You can see in the modern periodic table. So now next question is arrange the following above activity. Arrange the following above activity. Above elements vertically downward in the increasing order of atomic radius. तो increasing order of atomic radius आपको arrange करना है students. So that is ये जो elements है इसको आप increasing ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो मेरे को बताइए, इंक्रीजिंग करना है तो सबसे पहला छोटा वाला आएगा। तो पहला आएगा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक रेडियस कितना है? 152। ओके, गॉट इट। एंड देन कम्स थोड़ा उससे बड़ा वाला, क्योंकि आपको इंक्रीज़ करना है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करना है। तो नेक्स्ट विल बी सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक रेडियस कितना है? 186। ओके, देन नेक्स्ट विल बी सोडियम के बाद में पोटेशियम का कितना है? 231। ओके, देन व्हाट विल कम? देन कम्स 231 के बाद में आएगा 244, दैट इज रुबिडियम, दैट इज 244। एंड द लास्ट वन इज कैल्शियम का कितना आएगा स्टूडेंट्स? दैट इज 262। तो ऑल these elements are arranged in the increasing order of atomic radius. So इस तरह से आपको आंसर लिखना है। दिस इज़ थोड़ा रफ वर्क है, आप थोड़ा अच्छे से टेबल बना के आप उसको अच्छी तरह से बता सकते हैं। ऐसे टेबल बना के आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. What is question number 3? Does this arrangement match with the pattern of the group 1 of the modern periodic table? Yes. इसका आंसर है स्टूडेंट्स यस। अभी जो मैंने यहाँ पर जो बना के बताया था आप देख रहे थे, सब वो ग्रुप नंबर 1 से मैच करता है। तो आंसर इज यस। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द अब एलिमेंट्स हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम? तो यही क्वेश्चन पहले वाले एक्टिविटी में भी पूछा गया था। बिगेस्ट एटम मीन्स विच हैज़ एटॉमिक रेडियस द लार्जेस्ट। तो यहाँ पर लार्जेस्ट जो एटॉमिक रेडियस है वो है आपका कैल्शियम का। तो कैल्शियम का एटॉमिक रेडियस 262 है। तो द बिगेस्ट एटम विल बी ऑफ कैल्शियम। ओके, सो नाउ स्मॉलेस्ट एटम कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट एटम विल बी
लिथियम. वाई? बिकॉज उसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है 152, तो दैट विल बी द स्मॉलेस्ट. ओके स्टूडेंट्स. ओके. So now question number 5. What is the periodic trend observed in the variation of the एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप? तो एटॉमिक रेडियस के बारे में पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? तो व्हाट वी कैन से, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, दैट इज़ ग्रुप 1. तो वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. मैंने आपको वापस वो बताया था डिज़ाइन, ये ग्रुप केस में ये थोड़ा छोटा है, बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है. तो आप देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में हो या ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 हो या ग्रुप नंबर 2, सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है. एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है डाउन द group. So these all questions, 5 questions I have answered it. I hope so you have understood this lecture till the activity page number 25. So this para I will complete and then I will stop. That is while going down the group the atomic size goes on increasing. Yes, आपने देखा कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके. This is because while going down the group a new shell is added. एक एक शेल बढ़ता है स्टूडेंट्स. पीरियड नंबर 1 में एक ही शेल होता है, पीरियड नंबर 2 में 2 शेल होते हैं, 2 शेल होते हैं. तो आप देख रहे हैं जैसे क्लासरूम में बेंचेस बढ़ेंगे, एक बेंच होगा तो क्लासरूम छोटा होगा, 2 बेंचेस होगा तो क्लासरूम बड़ा होगा, 3 बेंचेस होगा तो क्लासरूम और बढ़ेगा. तो इस तरह से क्लासरूम बेंचेस बढ़ते जाएंगे तो क्लासरूम का साइज़ बढ़ता जाएगा. उसी तरह से पीरियड नंबर अगर बढ़ेगा तो उतने नंबर ऑफ़ शेल्स उसमें होते हैं और जितने शेल्स बढ़ेंगे उसका एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा. भले उसमें, और आप देख रहे डाउन द ग्रुप में लास्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे ग्रुप नंबर 1 में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 2 में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो उस हिसाब से जो भी साइज़ बढ़ेगी वो एटॉमिक साइज़ इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इट हैज़ मोर नंबर ऑफ शेल्स. Therefore the distance between the outermost shell and the nucleus goes on increasing. तो आपने देखा कि ग्रुप पीरियड नंबर 4 में 4 शेल्स है. तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है और ये आपका फोर्थ शेल है. तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सेंटर टू लास्ट ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में साइज बढ़ गया. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस पे भी चार्ज बढ़ रहा है, पर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ने के वजह से कुछ असर इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं होने के वजह से आउटरमोस्ट शेल और डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस जो है वो बढ़ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. Okay students, I hope so you have enjoyed this lecture. See you in next lecture. This time I think so I can complete the chapter. Till then, see you. Have a good day.